Hello students, this is the second video of lesson number 17. The name of the lesson is geometrical construction. In first video, we have learned how to draw a perpendicular bisector to the given line when the point is given exactly on the line. In that also, we have also seen three examples from practice set number 39. Now in this video, we are going to learn how to draw a perpendicular to a line. Okay, but what is the difference from the point outside the line when the point is given outside the line? Okay, then in such case, how to draw the perpendicular line? Okay, for that also again different methods are there. The first method is by folding the paper. Okay, very simple technique it is. Okay, now in that case, suppose now here procedure is given. First we will read the procedure. Draw a line MN on a paper. Okay, एक पेपर पर एक लाइन ड्रॉ करो MN. Okay, take a point P anywhere outside the line. एक पॉइंट P ले लो कहीं भी लाइन के बाहर. ओके, पहले वीडियो में हमने क्या देखा फर्स्ट पार्ट में, जो पॉइंट ये पॉइंट जो बाहर लिया था वो कहां पर था, लाइन पर था. ओके, नाउ द पॉइंट इज टेकन आउटसाइड द लाइन. ओके, कहीं पर भी ले लो पॉइंट. ओके, देन नेक्स्ट, कीपिंग द लाइन MN इन व्यू, फोल्ड द पेपर अलोंग द लाइन MN. ओके, जो लाइन MN हमने ड्रॉ की है उसी लाइन पर पेपर फोल्ड करना है. ओके, हाउ इज इट? नाउ लेट अस सी प्रैक्टिकली. नाउ हियर द लाइन MN इज ड्रॉन. ओके, पॉइंट P is taken outside the line. Okay, now fold the paper. Okay, पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है कि बराबर एग्जैक्टली जो लाइन MN है, ओके, उस पर फोल्ड करना है. राइट, वो दिखाई देनी चाहिए एग्जैक्टली लाइन पर ही फोल्ड करना है. अब देखो ना, उसे एग्जैक्टली लाइन पर फोल्ड किया है. राइट, ओके, then what we have to do? Now fold the paper through the point P in such a way that the part of line MN on one side of the fold falls on the part of the line MN on the other side of the fold. Okay, अब जो दूसरा फोल्ड है, दूसरा फोल्ड कैसे देना है, देखो यहां पर पिक्चर दिखा है. ओके, पॉइंट P पर फोल्ड करना है. नाउ सी, सपोज हियर इज द पॉइंट P. ओके, यहां पर तो ये पॉइंट बराबर वो पॉइंट फोल्ड होगा. ओके, एंड यहां पर ये दोनों लाइन बराबर एक दूसरे के साथ रहेगी, ऐसा ध्यान रखना है. ओके, ये पॉइंट P पर फोल्ड हो गया. देखो पॉइंट P, ओके, फोल्ड हो गया उस पर. ओके, नाउ लेट अस रीड द फर्दर प्रोसीजर. व्हाट इज गिवन? अनफोल्ड द पेपर. पेपर को खोलना है. खोलने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा. ओके, हम लोग भी खोलते हैं. ओके, खोला है पेपर को, ये देखो यहां पर फोल्ड दिखाई दे रहा है. ओके, ठीक है. देन नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू फोल्ड्स एज Q. ओके, ये जो पॉइंट है इसको क्या नाम देना है? Q. नेम इट एज Q. ओके, ड्रॉ लाइन PQ. दिस लाइन फॉल्स ऑन द फोल्ड इन द पेपर. ओके, तो लाइन PQ ड्रॉ करनी है. Right. Okay, it is done. Then using the protector यूज करना है किस लिए? For measuring the angle. Using the protector, measure every angle form at the point Q. Okay, प्रोटेक्टर यूज करके हमें एंगल मेजर. देखो ये एंगल का कितना है? 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री. ओके, अब ये बाकी नीचे वाले दोनों एंगल भी चेक करते हैं. Exactly how much they measure. This measures 90 degree, this measures 90 degree. Right? Exactly these lines are falling on 90 degrees line. Okay? Means what does it mean? All these angles measure 90 degree. Okay? So in this way, by the method of folding of the paper, we can draw perpendicular to the given line
and also passing through the point which is given outside the line. Okay, so line PQ is perpendicular to line MN. This line PQ is perpendicular to line MN, and it is written in this way. Okay, so this is the first method. The method is, what is its name? By folding the paper. Okay, now in first video we have learned how to use the set square. Okay, now here also second method is using a set square. ओके, सेट स्क्वायर यूज करना है. आप लोगों को ध्यान में आया ही होगा. ओके, सेट स्क्वायर यूज करके कैसे करना है. ओके, अब देखो, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था जहां पर पॉइंट है वहां पर ये वर्टेक्स हमने एडजस्ट किया था. अब ये सेट स्क्वायर इस साइड से बराबर एडजस्ट करो, यहां तक ऐसे एडजस्ट करो, लाइन ड्रॉ करो. ओके, इट विल कम परपेंडिकुलर. राइट. ओके, लेट अस रीड द प्रोसीजर. Draw line XY. Okay, this line XY is drawn. Then take point P anywhere outside XY. Point P लेना है line XY के बाहर. Then place one of the arms of the right angle of a set square along the line XY. Okay, set square का एक आर्म यानी एक साइड. ओके, कौन सी साइड? लेकिन राइट एंगल वाली साइड. ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल वाली है, तो ये आर्म नहीं तो ये आर्म. ओके, अलोंग द लाइन एक्स वाई पर फिक्स करनी है. ओके, एंड देन ड्रॉ द लाइन. सम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इट हैज गॉन ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द नोटबुक. ओके, थर्ड पॉइंट इज गिवन. Slide the set square along the line in such a way that the other arm of its right angle touches the point P. Okay, ये सेट स्क्वायर ऐसे इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये सेट स्क्वायर की ये साइड तो हमने फिक्स की है, ये साइड इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो बराबर पॉइंट P को टच होनी चाहिए, so that we can draw the line. Then draw the line along this side passing through the point P and name the line as line PS. Okay, और यहां पर लाइन ड्रॉ करना है और उसको नाम देना है लाइन PS. वाई एस? बिकॉज इस पॉइंट को भी नाम होना चाहिए ना. ओके, एंड मेजर द एंगल्स टू वेरीफाई दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर. और ये एंगल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. लेट अस सी प्रैक्टिकली. लाइन XY इज ड्रॉन. ओके, नाउ पॉइंट P इज टेकन आउटसाइड द लाइन. दिस इज पॉइंट P. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर. ओके, सेट स्क्वायर कौन से भी साइड से लगा सकते हो, या तो इस साइड से लगाओ नहीं तो इस साइड से लगाओ. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, तो सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर इस पॉइंट पर सेट होना चाहिए. ओके, तो सेट स्क्वायर की एक साइड लाइन XY पर एडजस्ट करो. ओके, हाउ टू एडजस्ट. ओके, अब यहां पर इस तरह से इस साइड से भी सेट स्क्वायर को एडजस्ट करो. ओके, सो दैट यू कैन ड्रॉ लाइन एंड दैट लाइन शुड पास थ्रू द पॉइंट P. ओके, पॉइंट P से पास होनी चाहिए. राइट. ओके, नाउ ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो. राइट. नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट S. ओके, राइट. नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू कैन मेजर द एंगल्स. ओके, नाउ सी exactly 90 degree 90 degree. Okay, even downside also you will find this angle also measures 90 degree 90 degree. Right, all these four angles measure 90 degree. So in this way, by using the set square we can draw the perpendicular to the given line even when the point is given outside the line. Okay, now let us move to third method. The third method is by using the compass and ruler. Okay, okay, now let us move to third type or third method, we can say, not type but third method. The third method is using a compass and ruler.
कंपास और रूलर इन स्केल यूज करके हाउ वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर. ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस रीड द प्रोसीजर, देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द नोटबुक. ड्रॉ लाइन MN, लाइन MN ड्रॉ करो. टेक एनी पॉइंट K आउटसाइड द लाइन, एक पॉइंट K आउटसाइड द लाइन ले लो, एक कहीं पर भी. देन प्लेसिंग द कंपास पॉइंट, कंपास का पॉइंट मतलब स्टील का पॉइंट, कंपास का स्टील का पॉइंट ऑन द पॉइंट K. ओके, एंड यूजिंग एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस. ओके, ये लाइन से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. ओके, लाइन से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेना है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड कन्वीनियंट डिस्टेंस. ओके, ड्रॉ आर्क्स टू कट द लाइन MN एट 2 पॉइंट्स AB. ओके, यहां पर स्टील का पॉइंट फिक्स करना है, ये पॉइंट K पर. ओके, एंड यहां से ऐसे 2 आर्क लेने हैं, उनको नाम देना है पॉइंट A, पॉइंट B. ओके, वेरेवर द आर्क विल इंटरसेक्ट द लाइन MN, ओके, उनको नाम देना है A, B. ओके, उसके बाद क्या करना है, अब ये जो दोनों 2 पॉइंट मिले हैं, ये दोनों पॉइंट से यहां से फिर से एक बार यहां पर कंपास का स्टील पॉइंट फिक्स करके इधर आर्क लेना है. यहां पर भी फिर से एक बार कंपास का स्टील पॉइंट फिक्स करके यहां पर आर्क लेना है. वो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए और उसको नाम देना है पॉइंट T. ओके, या ये क्या, ये यानी इस साइड में परपेंडिकुलर हो गई. ओके, इस साइड में परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब क्या है, पॉइंट T और पॉइंट K अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, देन एग्जैक्टली वी विल गेट द परपेंडिकुलर टोटल. ओके, तो देन द लास्ट इज प्लेस द कंपास एट A एंड टेकिंग द ग्रेटर डिस्टेंस देन हाफ ऑफ AB, ड्रॉ एन आर्क to the lower side of the line MN, same which I explained. Then the same point is explained, place the compass at point B और फिर से यहाँ पर आर्क लेना है. Then draw line KT और लाइन KT ड्रॉ करनी है. ओके, हाउ यू विल फाइंड इट, दिस वे, ऐसा मिलेगा. लाइन KT इज परपेंडिकुलर टू लाइन MN. ओके, वेरीफाई मतलब क्या है, प्रोटेक्टर यूज करके एंगल मेजर करो. ओके, लेट अस सी इन द नोटबुक. Okay, as per the procedure, what is it? Draw the line MN. Okay, ये यहाँ line MN हमने ड्रॉ की है. Okay, M and N. Then take point K anywhere outside the line. ले लिया point K. Okay, ठीक है. Now make use of the compass. Okay. एंड टेक, ये लाइन से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेना है. ओके, एंड देन मेक आर्क्स टू बोथ द साइड ऑफ एट 2 प्लेसेस ऑन द लाइन MN. ओके, ऐसे 2 आर्क मिल गए. ओके, नेम दीज 2 पॉइंट्स एज A एंड B. ओके, A एंड B. देन टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, आधे से ज्यादा ऑलरेडी है. ओके, तो इस साइड में पॉइंट B से एक आर्क ले लो और पॉइंट A से एक आर्क ले लो. राइट. ओके, दिस पॉइंट वी विल नेम इट एज पॉइंट T. राइट, पॉइंट T. नाउ ज्वाइन द पॉइंट K एंड T. Point K and T. Okay, and then lastly the last instruction is verify it. Verify it मतलब मेजर करो with the help of protector. लगाओ प्रोटेक्टर. ओके, देखो, दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री, दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री. ये नीचे वाली ये भी चेक करो, 90 डिग्री 90 डिग्री. राइट, इन दिस वे वी हैव कन्फर्म that all these angles measure 90 degree. Right, this is the third method to draw perpendicular to the given line when the point is outside the line. Okay, after that next point is given, think about it. Okay, फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा है, जैसा कल के एक वीडियो में भी, हमें इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था, वैसे ये यहाँ पर भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है.
इन द अबव कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन में why must the distance in the compass be kept constant? ओके, तो यहां से जो डिस्टेंस लिया है पॉइंट ए और बी के लिए और यहां से यहां तक ये कांस्टेंट क्यों रखना है? ओके, ये हमने चेंज किया ही नहीं था. ओके, के और एन का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमने इसके लिए रखा था. ओके, ये क्यों कांस्टेंट रखना है? देन ओनली वी कैन गेट द परपेंडिकुलर. ओके, अगर डिस्टेंस कम ज्यादा किया तो परपेंडिकुलर मिलेगी नहीं. ओके, कहीं भी ये आर्क कहीं इधर उधर कहीं भी जा सकता है. राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, अब देखो इन दिस टू concepts आर देयर, परपेंडिकुलर आल्सो एंड बाइसेक्टर आल्सो. ओके, अप टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न ओनली परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब ये एक लाइन है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरी लाइन, यानी इस यहां पर एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. ओके, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. अब ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बाइसेक्टर मींस द लाइन विच डिवाइड्स अनदर लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर. ओके, तो फॉर दैट पर्पज वन एग्जांपल इज गिवन. लेट अस सी अ वुडन योक. हियर योक इज गिवन, इज यूज्ड फॉर अ पुलिंग बुलक कार्ट. ओके, ये जो है योक, ये जो है ना बनाया है बैलगाड़ी को होता है. ओके, विच इज कॉल्ड योक. ये किस लिए यूज किया जाता है? बैलगाड़ी को खींचने के लिए. देन हाउ इज द पोजीशन ऑफ द योक डिटरमाइन? तो इस योक की पोजीशन के ऐसे तो नहीं ना बस लगा दिया, फिट कर दिया, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो भी ऐसा तो नहीं हो सकते. उसके लिए भी ये ज्योमेट्री बहुत जरूरी है. ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा जाता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा जाता है. ओके, एंड देन ओनली इट इज फिक्स्ड. देन टू डू दैट अ रोप इज यूज्ड टू मेजर इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्पाइन और मिडलाइन ऑफ द बुलक कार्ट. ओके, तो उसके लिए इसकी जो प्लेस फिक्स करनी है, फॉर दैट पर्पज व्हाट इज डन, वट एवर दिस एक्सेल इज देयर, ये बैलगाड़ी का जो एक्सेल होता है. ओके, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. देन ओनली योर बुलक कार्ट विल वर्क प्रॉपरली. ओके, विच ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इज यूज्ड? ओके, तो इक्वल डिस्टेंस. देन फाइंड आउट फ्रॉम द क्राफ्ट्समैन और फ्रॉम द एक्सपीरियंस पर्सन व्हाई दिस इज डन. ओके, नहीं तो बैलगाड़ी सीधी चलेगी ही नहीं तो बैलगाड़ी एक साइड में चलेगी, बैल एक साइड में चलेगा. ओके, और वो बैलों को गाड़ी खींचने के लिए भी बहुत तकलीफ होगी. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, मींस रिलेटेड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, उसका मीनिंग समझ लेते हैं पहला. ओके, एग्जैक्टली होता क्या है? हियर लाइन P and line Q pass through the point M on segment AB. This is segment AB. Line P and line Q pass through the point M. Okay. Then line P and line Q are bisectors of the line of the segment AB. Okay. ये जो पॉइंट M है exactly it is the midpoint of the segment AB. ये जो segment AB उसका exactly midpoint है. midpoint मतलब क्या है? ये जो पॉइंट M है ये सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो AB अगर 6 सेंटीमीटर है तो BM 3 सेंटीमीटर है, AM 3 सेंटीमीटर है. ओके, तो इट बाइसेक्ट्स द पॉइंट M बाइसेक्ट्स द सेगमेंट AB. बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में कट करना, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट. ओके, तो उसी पॉइंट से ये लाइन P और लाइन Q दोनों भी पास हो रही है. ओके, देन मेजर द एंगल बिटवीन लाइन P एंड सेगमेंट AB. ये लाइन P और सेगमेंट AB का एंगल मेजर करो, यू विल फाइंड एग्जैक्टली इट इज 90 डिग्री. ये कितना मिलेगा? 90 डिग्री. प्रोटेक्टर अगर आपको कंफर्म करना है तो प्रोटेक्टर भी लगा सकते हो. ओके, 90 डिग्री का एंगल. Right? Then next is given of the two lines P and Q, line P is the bisector and also perpendicular to segment AB. ये जो लाइन P है, लाइन Q है, दोनों में ओके, ये जो लाइन P है इसकी क्या स्पेशलिटी है कि ये लाइन P it bisects the segment AB and also it is perpendicular to the segment AB.
ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी करती है। ओके, हेंस इसीलिए लाइन P इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लाइन P को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर ऑल्सो एंड इट बाइसेक्ट्स द गिवन सेगमेंट। ओके, इसको हम लाइन नहीं बोल रहे हैं, इसको सेगमेंट बोल रहे हैं। ओके, यानी exactly the distance between A and B is cut into two equal parts, so it is called bisector. Okay, अब उसके लिए सेगमेंट ही होनी चाहिए। So why the line Q not the perpendicular bisector of segment AB? लाइन Q को क्यों नहीं बोल सकते? ओके, ये बाइसेक्ट तो करती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, यहां का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर लाइन Q इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट लाइन P इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB. ओके, आई होप नाउ दिस पॉइंट इज मच क्लियर टू यू. ओके, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करनी, बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत सिंपली आ सकते. ड्रॉ सेगमेंट AB ड्रॉ करो. देन प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन A. ओके, A पर कंपास का पॉइंट मतलब स्टील का पॉइंट. ओके, पेंसिल का पॉइंट नहीं, स्टील का पॉइंट फिक्स करो और दोनों साइड में आर्क ले लो. ओके, उसी तरह रिपीट द मेथड फ्रॉम पॉइंट B से करो, ऐसे आर्क मिलेंगे. ओके, नेम दीज 2 points as P and Q and join those 2 points. You will get the perpendicular also and bisector also. Okay, the same procedure is given here. Place the compass point at A and taking the distance greater than half. आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना, ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ही है. ओके, of AB draw 2 arcs, one below and one above of segment AB. ओके, पॉइंट A से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. ओके, यहां पर ऊपर एक आर्क तैयार करना है, नीचे एक आर्क तैयार करना है. उसी तरह पॉइंट B से फिर से वही रिपीट करना है. Place the compass point at B and using the same distance draw arcs to intersect the previous arcs at P and Q. Okay, उनको नाम देना है P and Q and draw line PQ. Okay, the line PQ is perpendicular bisector of segment AB. Verify मतलब मेजर करना है. Okay, let us see on the notebook. Okay, so draw segment. कितने सेंटीमीटर की लेते हैं अब, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की लेते हैं. ओके, देखो यहां पर मैंने प्रेस किया, यहां पर प्रेस किया. ओके, नेम दिस सेगमेंट एज सेगमेंट A एंड सेगमेंट B. ऑलराइट, नाउ टेकिंग मोर डिस्टेंस मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा. ओके, आधे से ज्यादा लेना है, यानी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लेना है. ओके, अब ये कंफर्म कर दें, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया. ओके, इट विल वर्क. ओके, देन फिक्स द पॉइंट, कंपास का पॉइंट B पर हमने फिक्स किया. एक ऊपर आर्क निकालो, एक नीचे निकालो. ओके, रिपीट द सेम प्रोसीजर एंड डोंट चेंज द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस चेंज करना नहीं. ओके, रिपीट इट. Okay, so that it should intersect this arc. Okay, and it should intersect this arc also. Okay, उन दोनों पॉइंट को नाम देना है एज पॉइंट P and Q. P and Q. Okay, and then join the points P and Q. ये जो पॉइंट P और Q मिले हैं, ओके, उनको क्या करना है, ज्वाइन करना है. एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, नाउ यू विल फाइंड दैट. ओके, एक वेरीफाई करते हैं. ये हमने 6 सेंटीमीटर की ली थी. ओके, देखो बराबर 3 सेंटीमीटर से पास हो रही है. ओके, इसका मतलब क्या है, ये सेगमेंट AB गॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, यानी बाइसेक्ट तो हो गई. ओके, अब परपेंडिकुलर है या नहीं है वो चेक करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर.
ये प्रोटेक्टर से चेक करते हैं वेदर इट इज परपेंडिकुलर और नॉट। देखो बेस लाइन बराबर फिक्स करनी है। ओके, सेंटर पॉइंट देखो 90 डिग्री बराबर, बराबर इस लाइन से जा रही हो, 90 डिग्री तक जा रही है। ओके, नीचे भी चेक करते हैं, बेस लाइन एडजस्ट करो, सेंटर पॉइंट एडजस्ट करो। ओके, 90 डिग्री मीन्स दिस लाइन PQ, okay, line PQ is perpendicular also and it bisects the segment AB also, right? So line PQ is called the perpendicular bisector of segment AB. Okay, here we can write line PQ is the perpendicular bisector of segment AB, right? Okay, now it is the time to move towards practice set number 40. In practice set number 40, total 4 examples are given. All 4 examples will be explained. First question is draw line L, take point P anywhere outside the line using a set square. यहाँ पर set square use करना है. Draw a line PQ perpendicular to line L. Okay. The question is asked. In question information is given. Draw a line L. Okay. ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी हमने. Okay, take point P anywhere outside the line. Point P anywhere outside the line. इसको नाम देते हैं P. Okay, and then using a set square. Set square use करना है. Okay, तो set square use करके पहले set square नीचे ठीक तरह से एडजस्ट करना है लाइन L पर. Okay, इस साइड से P पर बराबर ठीक तरह से एडजस्ट करना है. Okay, and then draw the line. ओके, इसको कंटिन्यू करो. ओके, एंड कंफर्म करो. विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू कैन कंफर्म इट वेदर इट इज परपेंडिकुलर और नॉट. ओके, यहां पर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है. ओके, सिर्फ परपेंडिकुलर है. ओके, सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर. 90 डिग्री का एंगल मिल गया. ओके, हो गया. दिस इज आवर आंसर. लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 इज ड्रॉ लाइन AB. लाइन AB ड्रॉ करनी है. टेक पॉइंट M एनीवेयर आउटसाइड द लाइन, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था. उस यूजिंग अ कंपास एंड रूलर, कंपास और रूलर यूज करना है. ड्रॉ लाइन MN परपेंडिकुलर टू लाइन AB. सिर्फ परपेंडिकुलर निकालनी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह कुछ नहीं, परपेंडिकुलर. ओके, ठीक है. ओके, लेट अस स्टार्ट. ड्रॉ लाइन AB ड्रॉ करनी है. 6 सेंटीमीटर की लेते हैं. ओके, ये जरूरी नहीं कि कितना सेंटीमीटर है वगैरह. ये AB. Okay, then take point M anywhere outside the line. Suppose this is the point M outside the line. ले लिया लाइन के बाहर पॉइंट M. Then using compass and ruler, ये कंपास यूज करना है. ओके, तो कितना डिस्टेंस लेना है? पहले क्या करना है? पहले स्टील का पॉइंट बराबर पॉइंट M पर फिक्स करना है. ओके, और लाइन से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. ऑलराइट, आप लोगों को भी दिखाई देना चाहिए. ओके, पॉइंट M पर मैंने फिक्स किया है. ओके, और लाइन से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया. इस साइड में एक आर्क बनाना है और दूसरे साइड में भी एक आर्क बनाना है. ओके, एंड यूजिंग द सेम डिस्टेंस यूज करके यहां पर एक आर्क तैयार करना है. ओके, यहां पर एक आर्क तैयार करना है.
वो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने चाहिए, राइट। यहां पर हो गए इंटरसेक्ट। ओके, नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट P, this Q and this suppose R. Okay, and then with the help of ruler join the point M and this point R. Alright, you will find that this is perpendicular to the given line. Okay, perpendicular मिलेगी, चेक करो 90 डिग्री का एंगल बराबर है। Alright, okay, so that's all about this. Let us move to example number 3. The question is, draw a line segment AB of length 5.5 centimeter. Okay, segment draw करनी है AB जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। Now what is it? Bisect it using a compass and ruler. उसको सिर्फ बाइसेक्ट करना है। ओके, तो करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, यानी उसमें वो परपेंडिकुलर भी आ जाएगी। ओके, तो ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, लेट अस बिगिन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। ओके, यहां से 5.5 5.5 सेंटीमीटर। ओके, सेगमेंट को नाम देना है ए बी। ओके, देन विथ द हेल्प ऑफ कंपास, ओके, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, ले लो, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया। ओके, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया। ऊपर एक आर्क तैयार करो, नीचे एक आर्क तैयार करो। ओके, रिपीट द सेम प्रोसीजर फ्रॉम पॉइंट ए विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस, कंपास का डिस्टेंस चेंज करना नहीं। ओके, उस आर्क को इंटरसेक्ट करो और नीचे वाला जो आर्क है उसको भी इंटरसेक्ट करो। ओके, देन नाउ इस पॉइंट को नाम दे दो सी डी। ओके, ज्वाइन दिस 2 पॉइंट सी डी। ओके, दिस 2 पॉइंट्स आर ज्वाइन। ओके, अब ये तो परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? ओनली व्हाट। ये बाइसेक्ट करने के बाद कितनी मिलनी चाहिए? ओके, यानी 5 सेंटीमीटर का हाफ 2.5। ओके, एंड जो 5 मिलीमीटर है उसका हाफ 2 मिलीमीटर और थोड़ा सा ज्यादा। ये देखो 2.5 यहां तक आ गया और 2 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, राइट। Then it got bisected. Okay, so segment AB is bisected. This is our answer, right? Now let us move to question number 4. Take a point R on line XY. Line XY पर point R लेना है. Draw a line perpendicular to XY at R. यूजिंग अ सेट स्क्वेयर। ओके, फिर से एक बार पढ़ते हैं। टेक अ पॉइंट आर ऑन लाइन एक्स वाई। लाइन एक्स वाई पर ऐसे लाइन एक्स वाई निकालनी है। ओके, एक्स वाई, उस पर एक पॉइंट लेना है, कौन सा? आर। देन ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। एक्स वाई को परपेंडिकुलर निकालनी है एट द पॉइंट आर यूजिंग अ सेट स्क्वेयर। ये तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा है हमने। ओके, बस करना क्या है, यहां पर सेट स्क्वेयर एडजस्ट करना है ऐसे, राइट, दिस वे। ओके, लेट अस सी इन द नोटबुक। ओके, इन इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिवन? टेक अप, ड्रॉ लाइन एक्स वाई। ओके, ये लाइन एक्स वाई हम ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई। लाइन बताइए तो उसके लिए कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके,
देन ऑन दैट टेक पॉइंट आर, पॉइंट आर हमने यहां पर ले लिया. ओके, देन ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर निकालनी है, बाइसेक्टर वगैरह कुछ नाम उन्होंने लिया ही नहीं है कहीं कहीं. ओके, तो पहले सेट स्क्वायर ठीक तरह से एडजस्ट करो. ओके, और बराबर इस पॉइंट पर ये वर्टेक्स आएगा, ऐसे एडजस्ट करो. ओके, एंड व्हेन यू इट इज कंफर्म, देन ड्रॉ द लाइन. ओके, देन with the help of scale continue it. ओके, इसको स्केल से कंटिन्यू करना है, बस हो गया. ओके, यू विल फाइंड दैट दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री. ओके, प्रोटेक्टर लगाते हैं, चेक करते हैं बराबर है या नहीं. 90 डिग्री, सी इट केयरफुली. ओके, ये बराबर 90 डिग्री पर जाती है लाइन. Right? Okay, in this way here our practice set number 40 is over. Okay, thank you everyone.